सेंटर में ही होता तो दो जने पीछे बैठ जाते। फिर यहाँ से हमारी बोट राइड शुरू हो गई है। और फायर क्या बोला था उसने, पता नहीं फायर हमारा ड्रॉपिंग है क्या? हाँ क्योंकि इनका ना एक जगह पे ड्रॉप तो है। इतना सुंदर है वो बेस बना हुआ है। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं यहाँ इंजन। तो ये फ्रूट्स के साथ यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दिस इज ऑल्सो Indian vegetarian based breakfast. Some milestone soup is there. Final round mixed veg sandwich with coffee. बाकी तो ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट मुझे तो ठीक लगा। ये वाले फ्लोर पे 75th फ्लोर है जहाँ पर कि सिर्फ वेजिटेरियन फूड है। एक और ऊपर फ्लोर है जहाँ पर कि नॉन वेज इंटरनेशनल फूड मिलेगा। हम वेजिटेरियन वाले पे आए तो यहाँ पे सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ। कन्नू को दिखाओ कितनी सुंदर लोकेशन है। देखो पुल भी साथ में नाव है। इट्स वेरी नाइस। द बेंचेस, पोस्ट ऑफिस लंदन। उसके अलावा यहाँ पे साइकिल, बहुत सारी जगह मैंने फोटोज बनवाई है। और ये इनकी सब पुरानी ट्रेडिशनल। We come from Mumbai. Let's go and have a cup of tea with you. Where is the police station? Yes. ये जो एरिया है मालूम नहीं कौन सा एरिया है, बट द थिंग्स आर, यहाँ पर भी ऐसी मार्केट लगी हुई है पीछे, बट बहुत कॉस्टली है यहाँ पर चीज़ें। जो हम एरिया में थे और वहाँ प्लेटिनम मॉल, वहाँ पे अच्छी थी चीज़ें। ये रोड का नाम तो लिखा हुआ है यहाँ पर। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद यहाँ पर अभी हमारी टैक्सी आने वाली है और हम आगे जाने वाले हैं फ्लोटिंग मार्केट। तो फ्लोटिंग मार्केट कैसी होती है वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस आपको होगी। तो अभी यहाँ वहाँ होटल से हम यहाँ तक आए थे एक टैक्सी करके, और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे इस वैन में, ये वाली वैन। ये हमें पूरे 4-5 पॉइंट घुमाएगी जो भी है। अभी तो सबसे पहला कहाँ जा रहे हैं वो मैं बताती हूँ।
रोड देखो कितनी सुंदर है ये अपनी। उधर तो पहले तो 2 घंटे हो गए हमारे को यहाँ से चले हुए, कम से कम 2 घंटे से ऊपर ही हो गया है। काफ़ी दूर है बैंकॉक से ये वाली जो एरिया है। तो विलेज लाइफ यहाँ की थोड़ी सी देखेंगे और ट्रेन ट्रैक पे कैसे वो लगी। अब तक सिर्फ उस पर देखा था वीडियोस वगैरह के अंदर और ये सभी कुछ देखा था। तो अभी जो है एक्चुअल में आज इसका एक्सपीरियंस करूँगी। अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेन मार्केट और ये आगे आगे हमारे गाइड जा रहे हैं जो कि हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। बहुत ही स्मॉल पाथ है ये चलने। Oh. Okay, this is a market. Train will come at 3:30. 3:30. You want to have lunch? Yeah, ये जैसे हमने पर्सेस वगैरह भी वहाँ देखे थे ना। सुनो, खुरकू। Mekong Railway Market. Okay. Yeah, the umbrella market. There some of the agency they just put the umbrella because this one the road. Yeah, but the real name Mekong Railway Market. Railway. Yeah. Railway track. Railway market. It's not long. You can walk like Okay. 20 minutes. 20 minutes walk from one end to No, to go and to come back. Okay. So this one even they get famous by the tourists. You can see a lot of the tourist stuff. But this one is still local market for the local people. Every town, every city in Thailand, they will have the local market like this for the local people. The train will Yes. drive past this one, so you will go closer over there to see the train. Okay. And you'll see how the people move the stuff. The train is only 1 hour journey, short, because in long time ago, the people who have the vegetable farm and fruit farm, they live inside, far from the main road. Okay. They use the train to come here, train for us to live. But if they go from there where they live, they have to find the taxi to the main road, take the public bus to outside, find the taxi to get inside here. But the train is easy for them. They pay only 5 to 10 baht. End of the day, they will come to park over here. Okay. And then in the morning they leave. So you see the time over there. The first train leaves 6:20 because the last train 7:40 they come to park over Okay. here. And then early morning they leave 6:20. Last train enters 5:40. Yeah. Oh, okay. And then 8:30 that's the time for the tourists come to see the train. They will come from outside to park inside the train station. 9 o'clock they will leave again. And then 11:10 they come again. Okay. And then 11:30 they leave again. Okay. And then 2:30 they come again, and now they're gonna leave 3:30. And then 5:40 they will come to park. I will say the local shop. And this is the last time for the tourists come to see it. So you will see some of the shop try to be closed, something like that. But no worry. Okay. You will see the train here with how the people they move the stuff. They will still have the shop. And then after that we walk a little bit, and then we go to the floating market. लंच किया, इतनी भूख लगी हुई थी ना। स्टिकी राइस विद बैंगो और स्प्रिंग रोल, और उधर खाएंगे चिकन नगेट्स, और साथ में ये लिया इटालियन सोडा लेमन।
ट्रेन के अभी निकलने का टाइम होने वाला है, तो शॉप्स जो है वो क्लोज हो रही हैं अभी। तो अनाउंसमेंट हो रहा है। यही एक वो है बार का चाम, आते ये लोग बहुत स्लोली, और सब नीचे हो गए हैं शेड्स वगैरह। स्लोली स्लोली आ रही है, और सामान तक को साइड में सब पड़ा हुआ है। नहीं, इधर तक तो नहीं टच हो गए। वेरी क्लोज। अंदर लोकल पीपल वो है ना। हेलो, कितनी लंबी है ट्रेन। ओ बाय। ये टूर मास्टर है जो उनके पीछे पीछे भाग रही है। अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए आगे मार्केट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थिंग्स आर कॉस्टली है एज कम्पेयर टू बैंकॉक मार्केट। हम जो इंदिरा चारों की इकट्ठे, तो लंबा पाथ है ये, ऐसे बना हुआ। यहाँ से ट्रेन निकल के गई थी अभी जो, बट एक अलग ही एक्सपीरियंस है। रेलवे ट्रैक मार्केट से होकर अब हम जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। 20 मिनट्स है यहाँ से, 5 मिनट हो गए हमें चले हुए, तो 15 मिनट में हम फ्लोटिंग मार्केट में पहुँचेंगे। और आसपास का व्यू सुपर। हाँ, वहाँ थोड़ी सी धूप थी, बट इट्स ओके। दिस वे। अभी हम जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट के लिए। ये है उसकी एंट्रेंस यहाँ से। अंदर चलेंगे, साथ साथ ही आपको दिखाती हूँ। So now we are in the floating market area. Okay, this area from before COVID happened, this is a lot of the shop as well. But now it's a lot of the shop is over there. So I will show you, but I want to show you about the local original Thai style over here first. Like people live by the canal, make the shop like this. Normally it's full of them until next bridge over there or more. But after COVID happened, people don't have, because this market they open only weekend, Friday, Saturday, Sunday, or long holiday. So the normal day in the week they don't have people come. So that means they can get the money when the weekend, when no tourists and many lockdown in Thailand in that time, they have no money. They cannot pay for rent per month. They have to go out to find the money for another job. So that's why the shop over here is being quiet until now. But the shop, they will have a lot of the shop over there. In this area, they will have a lot of the seafood stuff. Okay. A lot of the dessert. You can try dessert if you're vegetarian.
a lot of the drink thing, and I think they will do have some vegetarian thing. They do a lot of fruit as well. So this market is more local than tourist, where is the Thai people come in holiday. लोग यहाँ पे ये बोट में भी जाते हैं पूरा राउंड लेने के लिए, बट द वाटर इज, तो अभी जैसे कि गाइड ने बताया कि शॉपकीपर्स के पास कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए ये शॉप्स जो हो हमेशा खुली रहती है, पहले वीकेंड में थी। अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, खाने पीने का काफ़ी सामान और ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन घंटे हम यहाँ पे क्या करेंगे पता नहीं। कोई बैठने की जगह हो रहा तो बैठ जाइए, ऊपर जो है नहीं, और निकले बादल भी आ रहे हैं। अभी बैठे बैठे भी बारिश इतनी तेज शुरू हो गई। खड़े गए इस छाते के नीचे, ये ऊपर पार जाने के लिए। अभी 1 घंटा पड़ा है, जो शो हमारे गाइड ने बताया शुरू होने में, लेकिन अभी बुरी तरह थक चुके हैं। ये देखो एक ओल्ड बोट पड़ी है। क्या जो है पेंटिंग, और ये कैफे का बैकयार्ड इतना सुंदर ब्यूटीफुल है, और बारिश आने से और से ज़्यादा बना अच्छा से ग्रीनरी हो गई है। और ये पीछे नाइस व्यू ऑफ दिस कैफे एंड बैक साइड ऑफ दिस कैफे, जहाँ पर हम आए थे ये इधर से कैफे है, उधर उस तरफ फ्लोटिंग मार्केट है। फ्लोटिंग मार्केट से तो कुछ नहीं खरीदना था, बट वहाँ कॉफ़ी वगैरह पी, और यहाँ का व्यू देखने के लिए इतना सुंदर व्यू है। ये देखो शावर, ये फाउंटेन चल रहा है इस तरफ, ये वुडन वो मे भी कभी ये झूला होता होगा, और अब तो सिर्फ ऐसे लकड़ी का वो बन गया, इतना बड़ा ये मटका। ये सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं। बारिश हो गई ना, उससे व्यू को और ही सुंदर हो गया है। पूरे 1 आवर की राइड है हमारी, और 6:20 पे शुरू हुई है। वो तो बोट में ये कहाँ से उधर से मजे लगेगा। वो इतनी सी रिवर थोड़ी है, छोटी सी, काफी लंबी, थोड़ी ठंडी हवा लगी। सनसेट भी होने वाला है, वो तो हर जगह पे है। रोज होते हैं तभी तो यहाँ रोज। इधर फायर फ्लाइज होती है, जुगनू की रोशनी, लेकिन अभी यहाँ पे अंधेरे में, इसमें कैमरे में नहीं आएगा जो हमने एक्चुअल में उसको देखा है। बहुत सारे फायर फ्लाइज हैं, बहुत सारे। पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं आपको। ग्रीन तो दिख तो रहा है।